Welcome all of you class. I am Durgesh Kumar Pandey. Class, today I take a chapter in NCERT book. The name of this chapter is Election and Representative. So class, in all over the world, all the democratic countries are organize the election, free and fair election, and election is the method by which a democratic government choose their ruler, and peoples participate by giving their votes, and peoples choose their rulers, who is the governing of the country. It will decided by the public. So in all over the world, in all over the democratic country, election is a hallmark of democracy, and this election is generally free and fair. So class, in our country India, the responsibility of election is a very challenging. To make the election fair, free and fair, our constitution is arrange independent election commission. Class, so our Indian constitution is saying about in article 324, article 324 का फर्स्ट पार्ट, एंड दिस इज सेइंग कि सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल of preparation of the electoral rules, ठीक है, and the conduct of all the elections to the parliament and legislature of every state. It means जो पार्लियामेंट का इलेक्शन है और हर राज्य की जो स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन है, and of the election of the offices of president and vice president, या प्रेसिडेंट के इलेक्शन की जिम्मेदारी हो या फिर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की जिम्मेदारी हो, held under this constitution shall be vested a commission. तो इन इलेक्शंस के जिम्मेदार इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी एक कमीशन को होगी, एंड आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सेइंग दिस कमीशन इलेक्शन कमीशन. अगेन आई रिपीट माय वर्ड्स क्लास कि आर्टिकल 324 फर्स्ट पार्ट इज सेइंग कि द सुपरिटेंडेंस, सुपरिटेंड करना, डायरेक्शन देना एंड कंट्रोल ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रूल्स, और जो चुनाव की तैयारी करना, एंड द कंडक्ट ऑफ ऑल द इलेक्शन. हमारे इंडिया में जितने भी इलेक्शंस होते हैं, जैसे टू पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, एंड टू द लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट, हर राज्य में जो लेजिस्लेचर के चुनाव हुए, एंड ऑफ द इलेक्शन ऑफ ऑल द ऑफिसेस, और जो तमाम पोस्ट के लिए जो चुनाव होते हैं जैसे कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, वो हेल्ड अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी वेस्टेड अ कमीशन. तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने उसके लिए कमीशन बनाया है, एंड दिस कमीशन इज नोन एज election commission, and to make the election in India free and fair, our Indian constitution will try to make the election commission a independent body. जैसे हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है, वैसे ही हमारे इलेक्शन कमीशन को भी एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में सेटअप करने की कोशिश की गई है. तो क्लास, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो पार्लियामेंट का इलेक्शन कराए, राज्यों की स्टेट असेंबली का चुनाव कराए, प्रेसिडेंट का चुनाव कराए और वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव कराए.
Class, today I would like to explain some electoral reform. You already studied in the class 9 कि what is the election system in our country, and our election are many times face some challenges like the use of muscles power, use of money power. Huh? In the last hour of the elections, the exit polls are also influence the result of the elections. The candidate was using excess money to raise their votes. So you are looking, there are so many challenges, and you are often you are listening about the booth capturing, eh? Use of muscles power, money power. So these are big challenges for the election class. So our election commission was in recent time initiated some reform. And what are these reforms are? First, EVM, electronic voting machine, and the second is voter verifiable paper audit trial, and नोटा, नन ऑफ द एबव मीन्स अगर आपको कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है तो यू चूज द ऑप्शन ऑफ नोटा, नन ऑफ द एबव. एंड द फर्स्ट इज ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, एंड द सेकेंड इज वीवीपीएटी, वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल. क्लास, यू नो कि हमारे यहाँ इंडिया में इलेक्शन सिस्टम क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्शन जो डेट होती है वो अनाउंस होता है. दैन जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ना चाहते हैं दे अपना नाम ऐड करते हैं. जो ऑफिस होती है वहाँ पे वो अपना नाम फाइल करते हैं. देन आफ्टर इलेक्शन की डेट अनाउंस होती है. यू नो, आप ये प्रोसीजर जानते हो कि फिर जो कैंडिडेट्स होते हैं वो कैंपेनिंग करते हैं. कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है. यू नो, कोड ऑफ कंडक्ट विच आर कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ, जो इलेक्शन लड़ने वाले उनके बिहेवियर को कंट्रोल करती है. तो हमारी जो न्यू इलेक्शन कमीशंस हैं उसमें कुछ रिफॉर्म्स इनिशिएटिव किए हैं. सच है इसकी रेस्ट्रिक्शन ऑन द एग्जिट पोल. एग्जिट पोल पे रेस्ट्रिक्शन लग गया है कि अब एग्जिट पोल अपने फैसले नहीं देता है, क्योंकि क्लास देखो इलेक्शन कई स्टेप्स में होते हैं. मान लो फर्स्ट स्टेप में कहीं पे कुछ इलेक्शन हुए और एग्जिट पोल ने उसके रिजल्ट को अनाउंस कर दिया, और कहीं दूसरी जगह अभी सेकंड स्टेप में एक दिन के बाद इलेक्शन होने हैं. तो ये रिजल्ट एग्जिट पोल का दूसरे जगह के इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करेगा क्लास. सो दैट इज़ वाई जो एग्जिट पोल है उस पर इलेक्शन कमिश्नर ने रेस्ट्रिक्शन लगा दी क्लास. एंड एक और रिफॉर्म किया है इलेक्शन कमीशन ने क्लास. इलेक्शन कमीशन ने कुछ और रिफॉर्म किए लाइक सीलिंग ऑफ द इलेक्शन एक्सपेंडिचर, कि आप इलेक्शन में अधिक से अधिक कितने पैसा खर्च कर सकते हो. देखो, लोकसभा का जो इलेक्शन है उसके लिए 50 to 70 lakhs मैक्सिमम होगी आप लोकसभा के इलेक्शन में खर्च कर सकते हो. सिमिलरली जो स्टेट असेंबली का चुनाव है तो उसमें आप 20 से लेकर के 28 लाख तक मैक्सिमम खर्च कर सकते हो. तो जो अपर लिमिट है खर्च की वो इलेक्शन कमीशन ने जो है उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है कि इससे ज़्यादा आप खर्च नहीं कर सकते. एंड यूज ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड इन द इलेक्शन फंडिंग, और जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो पैसे की फंडिंग होती थी, पैसा उनको दिया जाता था चंदा के रूप में, या तो जो भी फंडिंग होगी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, तो उसमें वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का यूज़ करेंगे. जितनी भी यहाँ पर इलेक्शन फंडिंग होगी वो इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में होगी क्लास. तो दीज आर द सम इनिशिएटिव एंड रिफॉर्म्स आर टेकन बाय द इलेक्शन कमीशन. इसके अलावा क्लास आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म
सम मोर थिंग लाइक आपको मैं बताना ये चाहता हूँ कि फ्रॉम 11 सितंबर 2018 से कि इलेक्शन कमीशन अबॉलिश द नोटा ऑप्शन इन द बैलेट पेपर ऑफ द राज्यसभा एंड विधान परिषद एज द डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो क्लास 11 सितंबर 2018 से एक नई चीज़ आई है कि जो नोटा ऑप्शन है उस नोटा ऑप्शन को बैलेट पेपर से राज्यसभा के इलेक्शन के लिए और विधान परिषद के इलेक्शन के लिए इस नोटा ऑप्शन का यूज़ नहीं किया जा सकता एंड दिट वाज द गाइडलाइंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अभी 11 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि राज्यसभा और राज्यों की जो विधान परिषद है उसके इलेक्शन में नोटा जैसा ऑप्शन यूज़ नहीं किया जा सकता है। तो अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन ने नोटा का ऑप्शन ख़त्म कर दिया है। वन मोर थिंग क्लास आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2020 में देखो जो खर्च थे ये जो मैक्सिमम जो खर्च की लिमिट थी वो बहुत काफ़ी पहले किए 8 या 10 ईयर पहले किया। तो 2020 में एक और रिफॉर्म हुआ कि लोकसभा के और असेंबली स्टेट असेंबली के इलेक्शन में जो पैसे खर्च होते हैं उनको 10% और बढ़ा दिया गया है कि अपर लिमिट 10% और इंक्रीज जाएगी। इट मीन्स कि अगर आप लोकसभा के इलेक्शन में 70 लाख रुपीज़ खर्च करते हो तो ये 10% और बढ़ गया, यानी कि मैक्सिमम आप 77 लाख रुपया खर्च कर सकते हो। ठीक है, 70 लाख है तो 10% इसमें और बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 77 लाख रुपीज़। 10% बढ़ जाने से मैक्सिमम लिमिट हो गई आपके समय करंट में। और स्टेट असेंबली के लिए 28 लाख है तो उसमें 10% बढ़ा लो, यानी कि आपका अब 31.8 लाख यानी 31 लाख रुपीज़ तक नियर अबाउट यानी 30.8 लाख स्टेट असेंबली के लिए इलेक्शन मैक्सिमम लिमिट हो गई है क्लास। तो दीज आर द न्यू थिंग्स रिलेटेड टू इलेक्शन। इसके अलावा क्लास हमारे इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के बहुत सारे हमारी गवर्नमेंट ने अरेंजमेंट किया है। देखो ड्यूरिंग द इलेक्शन जो इलेक्शन कमीशन होती है वो सभी एडमिनिस्ट्रेशन को हायर कर लेती है और टाइट सिक्योरिटी पैरामिलिट्री फोर्सेस का यूज़ करा जाता है ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सके क्लास। सो क्लास टू मेक द इलेक्शन फ्री एंड फेयर हमारे यहाँ देखो जो वोट डालते हैं उनकी पहले जो एडल्ट था उसकी एज जो है 21 ईयर मानी जाती थी। तो एक चेंज हुआ कि जो एडल्ट है जो वोट डालता है वो 21 ईयर का था। तो टिल 1989 तक जो एक एडल्ट था उसकी एज 21 मानी जाती थी। और उसके बाद 1989 में एक अमेंडमेंट किया गया क्लास। ये 1989 में क्लास में एक अमेंडमेंट हुआ 1989 में एक अमेंडमेंट हुआ जिसमें जो वोटर्स है उनकी एज 21 ईयर से रिड्यूस करके 18 ईयर कर दी गई क्लास। यानी जो वोटर्स के लिए जो एलिजिबिलिटी है वोट डालने की 21 ईयर से 18 ईयर कर दी गई क्लास। एंड यू नो दिस अमेंडमेंट इज 61st अमेंडमेंट जिसमें वोटर्स की जो वोट डालने की एज है 21 ईयर से 18 ईयर कर दी गई। तो टिल 1989 तक जो वोट डालने की उम्र थी वो एलिजिबिलिटी 21 ईयर इससे पहले हुआ करती थी और 1989 से वोट डालने की एलिजिबिलिटी 18 ईयर हो गई क्लास। एंड वन मोर थिंग कि जो ये तो वोटर्स के लिए हो गया, अब जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए क्या प्रोविजंस चेंज हुए। देखो
तो आप जानो कि इफ़ यू वांट टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन ऑफ लोकसभा, अगर आप लोकसभा के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं या फिर स्टेट असेंबली के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो अ कैंडिडेट मस्ट बी एटलीस्ट 25 ईयर। कैंडिडेट की उम्र 25 ईयर होना चाहिए फॉर लोकसभा एंड राज्यसभा। फॉर लोकसभा एंड स्टेट असेंबली, इसके लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 ईयर। और सिमिलरली इफ यू वांट टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन ऑफ राज्यसभा या विधान परिषद, तो योर एज शुड बी एटलीस्ट 30 ईयर। ठीक है क्लास, अगर आपको राज्यसभा का चुनाव लड़ना है तो योर एज शुड बी 30 ईयर। और किसी कैंडिडेट को यदि प्रेसिडेंट बनना है, प्रेसिडेंट के लिए कॉन्टेस्ट करना है, तो मिनिमम एज जो है 35 ईयर होनी चाहिए क्लास। तो दीज आर द एज बाउंडेशन फॉर अ कैंडिडेट हु इज गोइंग टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। इसके अलावा कुछ और भी कंडीशंस हैं, जैसे देयर इज़ अ लीगल प्रोविज़न that a person who has undergone imprisonment for 2 or more years for some offences, मतलब 2 साल या 2 साल से ज़्यादा के समय तक कोई आदमी किसी ऐसे ऑफेंस अपराध के द्वारा दंडित किया गया हो और 2 या 2 साल से ज़्यादा जेल काट करके आया हो, इज़ डिसक्वालिफाइड फॉर द कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन लड़ने के लिए वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा। बट देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द इनकम, एजुकेशन और क्लास और जेंडर और राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। मतलब चुनाव लड़ने में आपको और कोई बाधाएं नहीं है। अगर आप किसी भी जेंडर के हो, किसी भी क्लास से बिलोंग करते हो, इनकम आपकी क्या है, एजुकेशन क्या है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इलेक्शन लड़ सकते हो। बट यही एक रिस्ट्रिक्शन है कि अगर आपने 2 साल या 2 साल से ज़्यादा सज़ा काटी है, दंडित हुए हो न्यायपालिका से, तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द कॉन्टेस्ट ऑफ इलेक्शन क्लास। तो क्लास आर्टिकल 324 इज सेइंग, Article 324 of the Indian Constitution provides for an independent election commission for the superintendence, direction and the control of the electoral rules and the conduct of election in India। तो हमारे यहाँ इन शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा गया कि एक इलेक्शन कमीशन होगा और इलेक्शन कमीशन को एसेस करने के लिए देयर इज़ अ चीफ इलेक्शन ऑफिसर इन एवरी स्टेट। हर राज्य में इलेक्शन कमीशन की मदद करने के लिए एक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होगा हर राज्य में, जो इलेक्शन कमीशन की मदद करेगा। देखो, इलेक्शन कमीशन लोकल गवर्नमेंट के चुनाव के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट के चुनाव के लिए एक अलग बॉडी होती है जिसको हम बोलते हैं स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, वर्क इंडिपेंडेंटली ऑन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड ईच हैज़ इट्स ओन स्फीयर ऑफ ऑपरेशन। मतलब लोकल गवर्नमेंट का चुनाव कराने के लिए एक अलग स्टेट इलेक्शन कमीशन होती है। ठीक है, और हर राज्य में हमारे इलेक्शन कमीशन जो नेशनल लेवल या स्टेट लेवल का इलेक्शन कराती है, उसकी मदद करने के लिए हर राज्य में एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं क्लास। देखो, इलेक्शन कमीशन जो शुरू में था सिंगल मेंबर था, लेकिन बाद में ये मल्टी मेंबर हुआ। टिल 1989 तक इलेक्शन कमीशन सिंगल मेंबर था, लेकिन 1989 के इलेक्शन से जस्ट पहले इसको
इसमें 2 नए इलेक्शन कमिश्नर्स चुने गए, अपॉइंट किए गए, मतलब ये जो कमीशन थी मल्टी मेंबर हो गई, और इलेक्शन के बाद फिर से ये इसको सिंगल मेंबर कर दिया गया क्लास। लेकिन 1993 में 2 इलेक्शन कमिश्नर्स वर वंस अगेन अपॉइंटेड एंड द कमीशन बिकम अ मल्टी मेंबर। फिर 1993 में फिर से 2 नए मेंबर्स अपॉइंट किए गए और इलेक्शन कमीशन मल्टी मेंबर बन गया एंड हैज़ रिमेन मल्टी मेंबर। तब से 1993 से जो इलेक्शन कमीशन है मल्टी मेंबर ही रहा है, ठीक है। और एक और डिस्प्यूट है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और इलेक्शन कमिश्नर उनके पावर्स को लेकर के विवाद हुए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जितने भी इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन कमिश्नर्स हैं सबकी पावर सेम रहेगी, केवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनकी मीटिंग को ऑर्गेनाइज करेगा, अदरवाइज जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में सबकी पावर सेम रहेगी क्लास। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर हैव इक्वल पावर टू टेक द ऑल डिसीजन रिलेटिंग टू द इलेक्शन एज ए कलेक्टिव बॉडी क्लास। दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब देखो ये कैसे अपॉइंट होते हैं। इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट करता है, लेकिन वो किससे एडवाइस लेके करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस से ही करता है। देखो इलेक्शन कमीशन जो है दे आर अपॉइंटेड फॉर अ 6 ईयर टर्म, 6 साल के लिए उनको चुना जाता है और कंटिन्यू टिल द एज ऑफ 65, या फिर वो उनकी उम्र 65 ईयर तक नहीं हो जाती तब तक वो इस पोस्ट पे रह सकते हैं। जो भी पहले हो, या अगर 6 ईयर का कार्यकाल पूरा हो गया तो, या फिर अगर वो लेट ज्वाइन करते हैं जैसे 63 ईयर पे ज्वाइन करते हैं और उनकी उम्र 65 ईयर हो जाती है तो भी उनका कार्यकाल ख़त्म हो जाएगा। जो भी पहले हो, 60 ईयर हो या फिर 65 ईयर हो, जो भी कार्यकाल के लिए पहले हो जाएगा वो उनका टेन्योर हो जाएगा, यानी 6 ईयर मैक्सिमम रह सकते हैं। और अगर उन्होंने उनकी रिटायरमेंट की एज है, लेट से ज्वाइन किया है तो 65 ईयर तक मैक्सिमम चल सकते हैं क्लास। चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स कैन बी रिमूव्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टेन्योर। जो उनका कार्यकाल है वो ख़त्म होने से पहले ही उनको उनके पद से हटाया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उनके पोस्ट से हटा सकता है बाय द कैसे? इफ़ द बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट मेक सच अ रिकमेंडेशन विद द स्पेशल मेजॉरिटी। यदि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज स्पेशल मेजॉरिटी से रिकमेंडेशन करें तो उनके बिहाफ पर प्रेसिडेंट जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उनके पोस्ट से हटा सकता है, ठीक है। तो दिस इज डन टू इंश्योर दैट रूलिंग पार्टी कैन नॉट रिमूव द चीफ इलेक्शन कमिश्नर हु रिफ्यूज टू फेवर इन इट्स इलेक्शन। तो इस तरह से जो इलेक्शन कमीशन है वो बिना डर के काम कर सकती है, क्योंकि उसको हटाने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए क्लास। तो उनको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए उनको हटाने के लिए, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट क्लास। इलेक्शन कमीशन के पास बहुत सारे फंक्शंस हैं, लाइक प्रिपरेशन या अप टू डेट ऑफ वोटर लिस्ट को अपडेट करना और वोटर लिस्ट को एरर फ्री बनाना, जैसे कि जो लोग डेथ कर गए हैं उनके नाम वोटर लिस्ट से हटा देना, या फिर कि जितने भी रजिस्टर्ड वोटर हैं उनके नाम इंश्योर करना, ठीक है। और जो नॉन एलिजिबल वोटर्स हैं उनके नाम भी हटाना, ये सब सारे काम हैं। इसके अलावा टाइमिंग ऑफ इलेक्शंस एंड प्रिपरेशन द इलेक्शन शेड्यूल, ये सारे काम इलेक्शन कमीशन को करने होते हैं। इलेक्शन शेड्यूल में आपको इलेक्शन की नोटिफिकेशन निकालना, ये भी काम शामिल है। डेट एंड फ्रॉम
उस डेट को बताना जिसमें कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन कर सकता है। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ स्क्रूटनी क्या होगी, लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल क्या होगा, डेट ऑफ पोलिंग क्या होगी, डेट ऑफ काउंटिंग क्या होगी और रिजल्ट डिक्लेरेशन का डेट क्या होगा।